مانسون کے پہلے ٹریلر نے ہی لاہور انتظامیہ کی فلم چلا دی. چند گھنٹے کی بارش سے شہر ڈوب گیا. سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل, صرف کشتیاں چلنا باقی. بیشتر علاقوں میں بھی بجلی غائب. مزید گرج برس کی پیش گوئی. لاہور ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر مسجد کی چھت گر گئی. متعدد افراد زخمی. امدادی کارروائیاں جاری. چوبرجی میں مسجد کی دیوار گر گئی. انتخابی میچ میں کون ان کون آؤٹ. امیدواروں کے پاس سوچ بچار کے لیے صرف 1 گھنٹہ رہ گیا. 4 بجتے ہی معاملات ہاتھ سے نکل جائیں گے. الیکشن کمیشن سیاسی کھلاڑیوں کو نشانات کل الاٹ کرے گا. پی ایس 6 کشمور میں دنگل سے پہلے ہی فتح کی سیٹی بج گئی. پیپلز پارٹی کے شبیر بجارانی نے بلا مقابلہ میدان مار لیا. الیکشن کمیشن سے 2018 کے پہلے کامیاب امیدوار کا نوٹیفیکیشن بھی جاری. اسلام آباد کی تینوں نشستوں پر نون لیگ کے چہرے فائنل. این52 سے طارق فضل چودھری میدان میں اتریں گے. ٹرائیبیونل کا فیصلہ کالعدم. این57 سے شاہد خاقان عباسی کو اکھاڑے میں اترنے کی اجازت. این101 فیصل آباد سے شیر غائب. عاصم نذیر آزاد الیکشن لڑنے کے فیصلے پر قائم. نون لیگ کی نو لیفٹ. جاوید ہاشمی این155 اور این157 دونوں حلقوں میں ہاتھ ملتے رہ گئے. کاغذات نامزدگی واپس لینا پڑے. عدالت سے نااہل دانیال عزیز کا اہلیہ کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ. تحریک انصاف میں ٹکٹوں کی تقسیم پر احتجاجی شو جاری. ملتان میں شاہ محمود قریشی کی رہائش گاہ کے باہر ناراض کھلاڑیوں کا دھرنا. لاہور زمان پارک دوسرے روز بھی کارکنوں کے گھیرے میں. انصاف کی درخواست جزوی طور پر منظور. الیکشن کمیشن نے پولنگ کا وقت 1 گھنٹہ بڑھا دیا. ووٹرز اب صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے. بٹھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اے سی کی گاڑی, ایوان اور گھر. دو خرم کو 5 سال کہاں تھے, اب کیا کرنے آئے ہیں. سیاستدانوں کو حلقوں میں جانا مہنگا پڑنے لگا. کپتان کے کھلاڑی خرم شیر زبان کو ووٹرز نے گھیر لیا. سرفراز بگٹی اور جام مہتاب کو بھی علاقہ مکینوں نے آڑے ہاتھوں لیا. کی فہرست میں ایک اور نام. مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر سابق ایم این اے شیخ وسیم الیکشن سے آؤٹ. عدلیہ مخالف ریلی پر 3 ساتھیوں سمیت 1 ماہ قید کی سزا. چاروں احاطہ عدالت سے گرفتار. انگلی اٹھانے والے نے ہاتھ جوڑ لیے. توہین عدالت کیس میں احسن اقبال کی غیر مشروط معافی. تفصیلی جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع. ہمدردیاں مسلم لیگ نون کے پلڑے میں آ رہی ہیں. 25 جولائی کو عوام عمران خان کو مسترد کر دیں گے. سابق وزیر داخلہ کا دعویٰ. پہلے تولو پھر بولو. شاہد خاقان عباسی بھی مشکل میں پڑ گئے. توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے منظور. سماعت منگل کو لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں ہوگی. نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست. سرل المیڈا کو طلبی کا نوٹس جاری. سماعت ستمبر تک ملتوی. انتخابی فیصلے عدالتوں کے نہیں عوام کے پاس ہونے چاہیے. سابق وزیر اعظم کی میڈیا گفتگو. الیکشن لڑوں کہ نہ لڑوں, فاروق ستار سیاسی الجھنوں میں الجھ کر رہ گئے. ایم کیو ایم پاکستان کے ووٹ بینک کو بکھرنے سے بچانے کی فکر 25 جولائی کو فتح کا دن قرار دیا. حلقے کا دورہ کرنے پہنچے تو شہریوں نے گھیر لیا. اگر آپ کراچی کے لوگوں کو صحیح گن نہیں سکتے تو آپ ہمیں حقوق کیسے دیں گے؟ سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب کو یہ کیس لڑنا چاہیے تھا, لیکن وہ خاموشی سے جا کر
मुश्तरका मफादात की का जो काउंसिल है उसमें जाकर खामोशी से साइन करके आ गए। मरदम शुमारी के मामले पर कराची से नाइंसाफी हुई, मुराद अली शाह चुप करके दस्तखत कराए। मुस्तफा कमाल का शिकवा, MQM अपने क्रिमिनल कारकुनों की फहरिस्त जारी करे, पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह का मुतालबा। एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत अख्तर राजा की खिदमात लेना अकरबा परवरी की क्लासिक मिसाल है। वाहिद केस है जिसमें JIT सरबराह बनने पर मुबारकबादें दी गईं। वकील मरियम नवाज के दलाइल, अल अजीजिया रेफरेंस में वाजिद ज़िया 3 जुलाई को तलब। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में नैब का शिकंजा मजीद सख्त, साबिक DG LDA अहद चीमा समेत 6 अफराद के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर, 1 अरब रुपए से जायद बेज़ाब्ती का इल्जाम। रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कराची में पासिंग आउट परेड, अहलकारों ने दहशत गर्दों से निमटने का अमली मुजाहिरा किया। स्ट्रीट क्राइम से निमटना बड़ा चैलेंज है, IG सिंध का तकरीब से खिताब। मुसलसल पसपाई के बाद रुपए की पेशकदमी, ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी को 50 पैसे का झटका, 123 रुपए 80 पैसे पर ट्रेडिंग। अमेरिका में फायरिंग का एक और वाकया, 38 साला शहरी ने रियासत मैरीलैंड में अखबार के न्यूज रूम में गोलियां बरसा दी, 5 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार दे दिए गए हैं और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। लाहौर हाईकोर्ट में साबिक वजीर आजम की अपील पर समाअत हुई और लाहौर हाईकोर्ट ने ट्राइब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। इसी पर बात करेंगे। दुनिया न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, अपडेट कीजिएगा। अशफाक से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं, NA57 मरी, जहां से शाहिद खाकान अब्बासी ने अपने कागजात जमा कराए थे, लेकिन उसके बाद जो ट्राइब्यूनल था उसकी जानिब से, एपलेट ट्राइब्यूनल की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया था और ये कहा गया था कि वो इस हल्के से दोबारा कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसके लिए शाहिद खाकान अब्बासी ने रुजू किया लाहौर हाईकोर्ट से और अब लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से उनके हक़ में फ़ैसला आया है और लाहौर हाईकोर्ट ने ट्राइब्यूनल का फ़ैसला मुअत्तल कर दिया है। इस तरह अब NA57 मरी से शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो गए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, अपडेट कीजिएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को नाअहल करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है और इन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई है। इसके साथ साथ जो इन्हें ताहयात नाअहल किया गया था वो फैसला भी लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने मुअत्तल कर दिया है। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी अपने वकील ख्वाजा तारिक रहीम के हमरा अदालत में पेश हुए और इस मौके पर शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल भी इजहार यकजहती के लिए मौजूद थे। 2 रुकनी बेंच के रूबरू ख्वाजा तारिक रहीम एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एपलेट ट्रिब्यूनल ने हक़ाइक़ के बरक्स साबिक वज़ीर आज़म के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए और इन्हें ताहयात नाअहल करार दिया, हालांकि ये इख्तियार उनके पास नहीं था। 2 रुकनी बेंच ने इस अपील को मंजूर करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को नाअहल करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया और इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। अशफाक, जिसने कागजात पहले दफा मंजूर किए थे उस आरओ को भी मुअत्तल कर दिया गया था, उस बारे में भी कोई खबर है कि उसका क्या होगा? जी, अभी तो लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अबूरी तौर पर ये हुक्म सुनाया है क्योंकि कागजात नामजदगी के हवाले से कल उम्मीदवारों की हतमी लिस्टें अवेजा होनी है, तो उस सिलसिले में लाहौर हाईकोर्ट ने सिंपल वो वाला जो ऑर्डर था एपलेट ट्रिब्यूनल का उसे मुअत्तल कर दिया है और 1 जुलाई को इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर से तमाम रिकॉर्ड तलब कर दिया है। 2 जुलाई को रिकॉर्ड तलब कर दिया है और ये कहा है कि 2 जुलाई को इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर का रिकॉर्ड पेश किया जाए ताकि इस अपील पर हतमी फैसला किया जाए। आज जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जो रिलीफ मिला है वो आर्जी रिलीफ है, यानी जो ट्रिब्यूनल की नाअहली का फैसला था सिंपल वो मुअत्तल हुआ है, जबकि हतमी फैसला 2 जुलाई को इलेक्शन कमीशन और हतमी फैसला 2 जुलाई को होगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने हमें अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि PS6 कश्मोर में दंगल से पहले ही फतह की सीटी बज गई। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शब्बीर बजारानी बिला मुकाबला कामयाब हो गए हैं और इलेक्शन कमीशन ने 2018 के पहले कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन
जारी कर दिया जी है। हाँ, इलेक्शन 2018 के पहले एमपीए हैं शब्बीर बजारानी, जो कि बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं PS6 कश्मोर से, और दंगल से पहले ही फतह की सीटी बज गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और आपको बताएं कि एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की मेमन मस्जिद आमद। नमाज जुमा के बाद शहरियों ने फारूक सत्तार को घेर लिया। शहरियों की जानिब से फारूक सत्तार से नोक झोंक हुई। जी हाँ, काम करते नहीं वोट मांगने आ जाते हैं। शहरियों ने गम गुस्से का इजहार इस तरह से किया, लेकिन फारूक सत्तार ने जवाब दिया कि इस बार काम करेंगे, भरपूर मेहनत भी करेंगे। साथ ही फारूक सत्तार कुछ कंफ्यूज दिखाई दिए और उन्होंने ये कहा कि वो इलेक्शन लड़ना नहीं लड़ाना चाहते हैं। बाज़ साथियों की जानिब से उन्हें कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन ना लड़ें, जबकि बाज़ का कहना है कि वो इलेक्शन लड़ें। शहरियों ने अलबत्ता फारूक सत्तार को घेर लिया और उनकी शहरियों से नोक झोंक हुई। और एमकेएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने मर्दमशुमारी दोबारा करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कराची की आबादी को दोबारा गिनती किया जाए। उनका कहना था कि हल्का बंदियों में कराची से नाइंसाफी हुई। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ मर्दमशुमारी दोबारा होनी चाहिए, हमारी सही आबादी गिनी जानी चाहिए। हमारा हल्का बंदियों में नाइंसाफी हुई, आधे हल्के खत्म, 21 नहीं, हमारी कौमी असम्बली की 40 सीटें होनी चाहिए। और मुनसिफाना वसाइल की तकसीम नहीं हुई। 70% का टैक्स कराची दे और 2% की खैरात मिले, ये खैरात भी हमें नहीं चाहिए। वफाकी वसाइल से 20% कराची को मिलना चाहिए, बाकी 10% हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर खास और नवाब शाह को मिलना चाहिए। और इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में सियासतदानों को अपने हलकों में जाना महंगा पड़ने लगा। कप्तान के खिलाड़ी खुर्रमशेर जमान को वोटर्स ने घेर लिया, जबकि सरफराज बुगटी और जाम मेहताब को भी इलाका मकीनों ने आड़े हाथों लिया। आप एक वजीर अल्लाह को हटा सकते हैं, पिछले 5 साल डेरा बुगटी में एक लेडी डॉक्टर आप नहीं ला सकते। आपने हम आवाम को सवाई माइल से क्या और किया दिया। यासिर खान भुटे जो ला रही हुआ जो गरीबन खे मानी रोटी है मासूमन जे मथो एहतियात है सही दराणी जो इहो इहो सही जो जुल्म थियो आहे जो कहर थियो आहे गाड़ी जो एॾो जुल्म नथो पए। अवार्ड देकर ऐवानों में बिठाने का मकसद ये नहीं है कि एसी की गाड़ी, ऐवान और घर नहीं सर। आपने आना था ना यहाँ पर, कहाँ उठाई सर आपने आवाज, कहाँ उठाई? इतने जुल्म सितम हुए, कहाँ आपने आवाज उठाई सर? दो खुर्रम को और इलेक्शन